کہتے ہیں انسان کی قسمت صرف دولت سے نہیں بدلتی. کبھی ایک سچی دعا، ایک نیکی، ایک صبر اور ایک مخلص انسان پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. قدیم زمانے کی یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی غریب مگر باعزت شخص کی ہے جس کی زندگی دکھوں، قرضوں اور ناکامیوں سے بھری ہوئی تھی. لوگ اسے منحوس کہتے تھے، قسمت کا مارا کہتے تھے، یہاں تک کہ اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس سے دور رہنے لگے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک ایسا وسیلہ مقرر کیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ وسیلہ تھی ایک نیک، صابر، باحیا اور اللہ سے ڈرنے والی بیوی. اس عورت نے نہ کسی جادو کا سہارا لیا، نہ کسی دولت مند کی خوشامد کی، نہ کسی بادشاہ کے دربار میں فریاد کی. اس کے پاس صرف ایمان، دعا، صبر، حسن اخلاق اور اپنے شوہر پر کامل اعتماد تھا. یہی 5 خزانے وہ طاقت بن گئے جنہوں نے ایک غریب انسان کو عزت، سکون اور خوشحالی عطا کر دی. آج کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب گھر میں ایمان، محبت اور صبر زندہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو آئیے چلتے ہیں کئی 100 سال پہلے کے ایک سرسبز مگر سادہ سے گاؤں میں جہاں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے. قدیم زمانے میں پہاڑوں کے دامن میں آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. وہاں مٹی کے گھر، کھجوروں کے درخت، کنویں اور کچے راستے تھے. لوگ کھیتی باڑی کرتے اور چھوٹے موٹے کاروبار سے اپنی زندگی گزارتے تھے. اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا. احمد نہایت ایماندار، نرم دل اور محنتی تھا، مگر اس کی قسمت جیسے ہر قدم پر اس کا امتحان لیتی تھی. وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے مزدوری کے لیے نکلتا اور شام گئے واپس آتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ اسے کام ہی نہ ملتا. کبھی کوئی مزدوری ادھوری رہ جاتی، کبھی اجرت روک لی جاتی، کبھی سامان خراب ہو جاتا اور کبھی کوئی دوسرا اس کی جگہ کام لے جاتا. گاؤں والے آہستہ آہستہ اسے بدقسمت سمجھنے لگے. جب بھی کوئی نقصان ہوتا تو وہ کہتے، یہ ضرور احمد کے آنے کی وجہ سے ہوا ہوگا. یہ باتیں احمد کے دل کو زخمی کر دیتی، مگر وہ کبھی کسی سے شکایت نہ کرتا. وہ رات کو سجدے میں گر کر صرف اتنا کہتا، اے میرے رب، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر یہ میری اصلاح ہے تو مجھے بہترین انسان بنا دے. اس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا اور باپ بھی کئی سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. اب وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا. اس کے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ زمین، نہ دولت، صرف ایک چھوٹی سی جھونپڑی اور اللہ پر مکمل یقین. اسی گاؤں میں ایک بزرگ شخص رہتے تھے جن کی بیٹی کا نام زینب تھا. زینب خوبصورتی سے زیادہ اپنے کردار، حیا اور عبادت کی وجہ سے مشہور تھی. وہ ہر صبح فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتی، پھر اپنے والد کی خدمت میں لگ جاتی. اگر کسی غریب کے گھر چولہا نہ جلتا تو وہ خاموشی سے کھانا پہنچا دیتی. اگر کسی یتیم بچے کے کپڑے پھٹ جاتے تو وہ رات بھر جا کر انہیں سی دیتی. گاؤں کی عورتیں اکثر کہتے، ایسی بیٹی ہر گھر کو نصیب نہیں ہوتی. اس کے والد ہمیشہ کہتے، بیٹی انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہوتی ہے. زینب یہ بات اپنے دل میں بسا چکی تھی. اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا تھی. ایک دن زینب کے والد نے اسے اپنے پاس بلایا. انہوں نے محبت سے کہا، بیٹی، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے. زینب نے ادب سے سر جھکا لیا. والد نے کہا، لڑکا نہ دولت مند ہے، نہ اس کے پاس زمین ہے، نہ تجارت، مگر وہ دیانتدار، نماز کا پابند اور اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے. زینب نے پوچھا، ان کا نام؟ احمد. یہ سنتے ہی آس پاس بیٹھی عورتیں حیران رہ گئیں. انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا، وہ بدقسمت لڑکا، اس کے گھر میں تو غربت کے سوا کچھ نہیں. اپنی بیٹی کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ لیکن زینب خاموش رہی. کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، ابا جان، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے تو میرے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے. والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا، بیٹی، مجھے یقین تھا تم یہی جواب دو گی. چند دن بعد پورے گاؤں کی مسجد میں نہایت سادگی سے نکاح ہوا. نہ بڑی دعوت تھی، نہ قیمتی لباس، نہ سونے کے زیورات.
सिर्फ चंद खजूरें, पानी, चंद बुजुर्गों की दुआएं और अल्लाह का नाम। अहमद निकाह के वक्त बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वो सोच रहा था, या अल्लाह, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी तूने मुझे इतनी नेक बीवी अता कर दी। दूसरी तरफ ज़ैनब भी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मुझे ऐसा सब्र अता फरमा कि मैं हर हाल में अपने शोहर का सहारा बन सकूं। निकाह के बाद जब ज़ैनब पहली बार अहमद के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में सिर्फ चंद बर्तन, एक पुरानी चारपाई और मिट्टी का चूल्हा था, मगर उसके चेहरे पर कोई मायूसी ना थी। उसने घर में दाखिल होते ही कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां अल्लाह का नाम लिया जाए वही सबसे खूबसूरत घर होता है। अहमद खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात हो चुकी थी। घर में जलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा तेल का चिराग था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अहमद ने धीमी आवाज में कहा, ज़ैनब, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसके तुम हकदार हो। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं दौलत के लिए नहीं आई, मैं तुम्हारी शरीके हयात बनकर आई हूँ। अहमद ने नजरें झुका ली। उसने कहा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो बिगड़ जाता है। ज़ैनब ने नरमी से कहा, किस्मत इंसान नहीं बदलता, किस्मत बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। फिर उसने वजू किया, 2 रकअत नफल अदा किए और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर दुआ की। ज़ैनब ने हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे रब, अगर हमारे घर में रिज़्क कम है तो अपने फजल से बढ़ा दे। अगर हमारे नसीब बंद हैं तो अपनी रहमत से खोल दे। अगर हम आजमाइश में हैं तो हमें सब्र अता फरमा, और अगर खुशियां लिखी हैं तो हमें शुक्रगुजार बना। उस रात दोनों ने भूखे पेट सोकर भी दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखा। उन्हें मालूम नहीं था कि आसमान पर उनकी ये दुआ कबूलियत के सफर पर रवाना हो चुकी है, और बहुत जल्द अल्लाह ताला उनकी जिंदगी का रुख इस तरह बदलने वाला था कि पूरा गांव हैरान रह जाएगा। निकाह को चंद ही दिन गुजरे थे। अहमद और ज़ैनब की जिंदगी अभी भी तंग दस्ती में गुजर रही थी। हर सुबह अहमद मजदूरी की तलाश में निकलता और शाम को या तो थोड़ा सा आटा लेकर आता या खाली हाथ वापस लौटता। एक शाम अहमद बहुत थका हुआ घर आया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। आज भी काम नहीं मिला, उसने धीमी आवाज में कहा। ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। हालांकि घर में सिर्फ 2 खुश्क रोटियां और एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी था। उसने रोटियां चूल्हे की हल्की आंच पर गर्म की और कहा, अल्लाह का शुक्र है, आज रात हमारे पास खाने को कुछ तो है। दोनों अभी खाने बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़े गरज से अटे हुए थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और उसकी आंखों में कई दिन की भूख नुमाया थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं 3 दिन से सफर में हूँ। कई घरों के दरवाजे खटखटाए मगर किसी ने खाना नहीं दिया। अगर एक लुकमा भी मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें उसका बेहतरीन बदला देगा। अहमद एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसने पीछे मुड़कर ज़ैनब की तरफ देखा। ये इन दोनों का आज का वाहिद खाना था। ज़ैनब ने बगैर किसी तरद्दुद के दोनों रोटियां उठाई, एक कपड़े में लपेटी और मुसाफिर के हाथ में रख दी। अहमद ने हैरत से कहा, लेकिन फिर हम क्या खाएंगे? ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो रिस्क अल्लाह के रास्ते में दिया जाए वो कभी जाया नहीं होता। अगर आज हम भूखे सो जाएंगे तो क्या हुआ, शायद किसी और की दुआ हमारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों के लिए दिल से दुआ की, अल्लाह तुम्हारे घर को ऐसी बरकत दे कि कभी रिस्क की कमी ना हो, तुम्हारी नस्लों तक खैर पहुंचे। वो चला गया, मगर उसकी दुआ जैसे आसमान की तरफ बुलंद हो चुकी थी। उसी रात अहमद और ज़ैनब ने सिर्फ पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह अहमद हस्बे मामूल मजदूरी की तलाश में निकला। रास्ते में एक अमीर ताजिर की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। कई ताकतवर आदमी कोशिश कर चुके थे मगर गाड़ी ना निकल सकी। अहमद ने आगे बढ़कर कहा, अगर इजाजत दें तो मैं कोशिश करूं। लोग हंसने लगे। जिसे अपनी किस्मत संभालनी नहीं आती वो हमारी गाड़ी क्या निकालेगा? अहमद ने कोई जवाब ना दिया। उसने खामोशी से अल्लाह का नाम लिया, कंधा गाड़ी के पहिए से लगाया और पूरी ताकत से धक्का दिया। चंद लम्हों बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आई। ताजिर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम अहमद है। ताजिर ने इसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर ईमानदारी नुमाया थी। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो सच्चा हो, मेहनती हो और ईमानत में खयानत ना करता हो। अहमद ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये कई महीनों बाद पहली बार था कि उसे मुस्तकिल काम की उम्मीद नजर आई।
شام کو جب وہ خوشی خوشی گھر آیا تو زینب نے اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر پوچھا، آج ضرور کوئی خوشخبری ہے؟ احمد نے سارا واقعہ سنایا۔ زینب نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، دیکھا اللہ نے بھوکے مسافر کی دعا قبول کر لی۔ احمد نے اگلے دن سے تاجر کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا، حساب کتاب بھی دیانتداری سے کرتا اور ہر چیز امانت سمجھ کر سنبھالتا۔ کچھ مزدور اس کی تعریف کرتے مگر کچھ اس سے حسد کرنے لگے۔ ایک شخص جس کا نام سالم تھا خاص طور پر احمد سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ اسی طرح مالک کا پسندیدہ بنتا گیا تو میری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے احمد کے خلاف سازش شروع کر دی۔ ایک دن اس نے جان بوجھ کر چند قیمتی چاندی کے سکے غائب کر دیے اور الزام احمد پر لگا دیا۔ تاجر سخت ناراض ہوا۔ احمد، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم نے یہی بدلہ دیا۔ احمد نے سکون سے جواب دیا، اللہ گواہ ہے میں نے ایک سکہ بھی نہیں لیا، مگر ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اسے کام سے نکال دیا گیا۔ وہ شام کو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ احمد نے گھر آ کر ساری بات زینب کو بتائی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، شاید واقعی میری قسمت کبھی نہیں بدلے گی۔ زینب نے اس کی بات غور سے سنی، پھر پانی کا پیالہ اس کے سامنے رکھا۔ پہلے پانی پیجئے، پھر میری بات سنیے۔ احمد خاموشی سے بیٹھ گیا۔ زینب نے نہایت نرمی سے کہا، اگر تم سچے ہو تو غم کیوں کرتے ہو؟ لوگ مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ لوگوں کا یقین ضروری نہیں، اللہ کا علم کافی ہے۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی بیوی صرف ایک شریک حیات نہیں بلکہ اس کے حوصلے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زینب نے مزید کہا، یاد رکھو آزمائش کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ شاید اللہ تمہیں اس کام سے بھی بہتر راستہ دینا چاہتا ہے۔ اس رات دونوں نے لمبی نماز پڑھی اور اللہ سے انصاف کی دعا مانگی۔ 2 دن بعد سالم کی ایک اور چوری پکڑی گئی۔ اس بار اس نے سونے کے سکے چرائے تھے۔ مار کھانے کے خوف سے اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس نے اعتراف کیا، پہلے بھی چاندی کے سکے احمد نے نہیں میں نے ہی چھپائے تھے، میں اس سے حسد کرتا تھا۔ یہ سن کر تاجر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ فوراً احمد کے گھر پہنچا۔ احمد اس وقت اپنے چھوٹے سے صحن میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تاجر اس کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے ایک بے گناہ پر الزام لگا دیا۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں نے دل سے معاف کر دیا۔ تاجر حیران رہ گیا۔ وہ بولا، تم جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، آج سے تم صرف مزدور نہیں میرے کاروبار کے نگران ہو۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اس نے گھر آ کر زینب کو یہ خبر سنائی تو زینب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، تیرا شکر ہے، تو اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ تو صرف آغاز تھا۔ جلد ہی ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو نہ صرف احمد کی قسمت بدل دے گا بلکہ پورے گاؤں کو یہ ماننے پر مجبور کر دے گا کہ ایک نیک، صابر اور دعا کرنے والی بیوی واقعی اپنے شوہر کی زندگی میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ چند دن گزرے تو احمد نے تاجر کے کاروبار کی ذمہ داری پوری دیانتداری سے سنبھال لی۔ اب وہ صرف مزدور نہیں رہا تھا بلکہ گوداموں کی نگرانی، مال کی گنتی، خرید و فروخت کے حساب اور قافلوں کی روانگی تک ہر کام اس کی نگرانی میں ہونے لگا۔ شروع میں بہت سے لوگ حیران تھے کہ ایک غریب شخص اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سنبھالے گا، مگر احمد نے ثابت کر دیا کہ دولت سے نہیں بلکہ کردار سے اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہر صبح فجر سے پہلے اٹھتا، مسجد میں نماز ادا کرتا، پھر اللہ سے دعا کرتا، اے میرے رب، مجھے کبھی حرام کی طرف نہ جانے دینا، چاہے فاقے ہی کیوں نہ کرنے پڑے۔ ایک دن تاجر نے جان بوجھ کر احمد کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بھاری تھیلی میں سونے کے دینار رکھے اور گودام کے ایک کونے میں چھوڑ دی۔ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ شام کو جب سب لوگ چلے گئے تو احمد نے صفائی کرتے ہوئے وہ تھیلی دیکھی۔ اس نے تھیلی کھولی تو اندر چمکتے ہوئے سونے کے سینکڑوں دینار تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا، اگر ان میں سے چند سکے بھی رکھ لوں تو شاید کوئی نہ جان سکے۔ مگر اسی لمحے اسے زینب کی بات یاد آئی، اللہ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ احمد نے فوراً تھیلی بند کی اور اگلی صبح تاجر کے حوالے کر دی۔ تاجر مسکرا دیا، مجھے معلوم تھا تم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے انعام کے طور پر احمد کو چند سونے کے دینار دینا چاہے، لیکن احمد نے ادب سے کہا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اس کا اجر صرف اللہ سے چاہتا ہوں۔ یہ جواب سن کر تاجر کی آنکھیں بھر آئی۔ 「」 – 「 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 – 「」 اس دن سے احمد کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔
दूसरी तरफ जैनब भी खामोशी से नेकियों के बीज बो रही थी। अगर किसी बेवा के घर चूल्हा ना जलता तो वो अपने हिस्से का आटा आधा करके उसे दे आती। अगर किसी बीमार औरत के पास दवा के पैसे ना होते तो वो अपने हाथ से कढ़ाई किया हुआ कपड़ा बेचकर उसकी मदद करती। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो कभी किसी को अपने एहसान का एहसास नहीं होने देती थी। वो हमेशा कहती, जो नेकी लोगों को दिखाने के लिए की जाए उसका अजर लोगों से मिलता है, लेकिन जो नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए हो उसका अजर अल्लाह देता है। एक दिन अहमद ने देखा कि घर में रखा हुआ आटा कम होता जा रहा है। उसने पूछा, जैनब क्या हम ज्यादा खाने लगे हैं? जैनब ने मुस्कुराकर बात टाल दी। मगर चंद दिन बाद अहमद को मालूम हुआ कि जैनब कई गरीब खानदानों में खामोशी से राशन तकसीम कर रही है। अहमद ने हैरान होकर पूछा, जब हमारे अपने हालात भी अच्छे नहीं तो तुम ये सब क्यों करती हो? जैनब ने नहायत सुकून से जवाब दिया, अहमद, जो हाथ अल्लाह के बंदों को देता है अल्लाह कभी उसे खाली नहीं रहने देता। अहमद खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी बीवी सिर्फ इबादत गुजार ही नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखने वाली औरत भी है। कुछ ही अरसे बाद ताजिर ने अहमद को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। इस बार तुम मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे नुमाइंदे बनकर काफिले की क़यादत करोगे। ये एक तवील और खतरनाक सफर था। रास्ते में घने जंगलात, पथरीले पहाड़, सुनसान मैदान और डाकुओं के हमलों का खतरा था। अहमद ने रवानगी से पहले घर आकर जैनब से दुआ की दरख्वास्त की। जैनब ने एक छोटी सी थैली में खजूरें रखी और कहा, ये रास्ते के लिए हैं और ये कुरान पाक की चंद आयात हैं, उन्हें हमेशा पढ़ते रहना। फिर उसने अपने शोहर के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, याद रखना, रिज्क अल्लाह देता है, तलवार नहीं, इसलिए कभी जुल्म ना करना, कभी किसी का हक ना मारना और हर हाल में सच बोलना। अहमद ने वादा किया। काफिला रवाना हो गया। कई दिन तक सफर जारी रहा। एक रात वो एक सुनसान वादी में ठहरे। रात के आखिरी पहर अचानक घोड़ों के हिनहनाने की आवाज आई। पहरेदार दौड़ते हुए आया, होशियार, कुछ सवार हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग घबरा गए। उन्हें यकीन था कि शायद डाकू हमला करने वाले हैं। अहमद ने सब लोगों को पुरसुकून रहने का हुक्म दिया। वो खुद एक पत्थर पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसे जैनब की नसीहत याद आई। उसने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर हमारी नीयत पाक है तो हमारी हिफाजत फरमा। चंद लम्हों बाद घोड़ों पर सवार लोग करीब आए, लेकिन वो डाकू नहीं थे। वो सल्तनत के सिपाही थे। उनके सरदार ने बताया, हमें इतला मिली थी कि इस रास्ते में डाकू मौजूद हैं, इसलिए बादशाह ने हमें काफिलों की हिफाजत के लिए भेजा है। काफिले के तमाम लोग हैरान रह गए। अगर ये सिपाही ना आते तो शायद सुबह तक वाकई डाकू हमला कर देते। सिपाहियों की मौजूदगी में काफिला महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ताजिर को जब यह खबर मिली तो उसने कहा, अहमद, तुम जहां जाते हो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होती है। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरी नहीं, मेरे रब की मेहरबानी है और मेरी बीवी की दुआओं का असर है। काफिला कामयाबी से वापस आया तो तिजारत में गैर मामूली मुनाफा हुआ। ये मुनाफा गुज़िश्ता कई बरसों से कहीं ज्यादा था। ताजिर ने तमाम हिसाब किताब देखा तो हैरान रह गया। किसी किस्म की चोरी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ और हर दिनार का हिसाब दुरुस्त था। उसने सब लोगों के सामने ऐलान किया, आज से अहमद सिर्फ मेरा मुलाजिम नहीं बल्कि मेरे कारोबार का शरीक होगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कभी अहमद को मनहूस कहते थे आज उसकी तारीफें करने लगे। कुछ ने कहा, अहमद की किस्मत अचानक कैसे बदल गई। कुछ ने जवाब दिया, जब से उसकी शादी जैनब से हुई है उसके हालात बदलते जा रहे हैं। गांव की बुजुर्ग औरतें आपस में कहने लगी, ये इस नेक बीवी की बरकत है जो हर रात अपने शोहर के लिए दुआ करती है, गरीबों की मदद करती है और कभी नाशुक्री नहीं करती। उसी रात अहमद घर आया तो उसके हाथ में पहली बार अच्छी खासी रकम थी। उसने वो सारी रकम जैनब के सामने रख दी। जैनब ने रकम की तरफ देखा भी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें गरीबों का कितना हक है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, अगर मुझे दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिली है तो वो ये नेक, साबिर और शुक्रगुजार बीवी है। मगर किस्मत की असल आजमाइश अभी बाकी थी। दौलत के साथ हसद भी बढ़ने वाला था और कुछ लोग अब अहमद को गिराने के लिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक साजिशें करने वाले थे। अहमद की कामयाबी को अब कई माह गुजर चुके थे। उसका नाम सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों में भी एक ईमानदार और दयानतदार ताजिर के तौर पर लिया जाने लगा था।
वही लोग जो कभी उसे बदकिस्मत कहते थे अब इसके साथ कारोबार करने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन हर कामयाबी अपने साथ कुछ दुश्मन भी लेकर आती है। गांव में चंद ऐसे लोग थे जिन्हें अहमद की इज्जत, उसकी तरक्की और लोगों की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनमें सबसे आगे सालम था, जिसकी चोरी पकड़े जाने के बाद उसे ताजिर ने नौकरी से निकाल दिया था। सालिम के दिल में इंतकाम की आग सुलग रही थी। एक रात उसने अपने दो साथियों से कहा, जब तक अहमद जिंदा है लोग हमें कभी इज्जत नहीं देंगे। अगर हम उसकी इज्जत खत्म कर दें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उनमें से एक ने पूछा, लेकिन वो तो हर मामले में सच्चा साबित होता है, उसे कैसे बदनाम करेंगे? सालिम ने मुस्कुरा कर कहा, हर इंसान को तलवार से नहीं अफवाहों से भी मारा जा सकता है। अगले ही दिन गांव में अजीबोगरीब बातें फैलने लगी। कोई कहता अहमद ने जरूर खुफिया खजाना ढूंढ लिया है, कोई कहता उसने काला जादू करवा रखा है, और कोई ये कहता इतनी जल्दी किस्मत सिर्फ मेहनत से नहीं बदलती। अहमद को ये सब बातें मालूम हुई, मगर उसने किसी से झगड़ा ना किया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो जैनब ने उसके चेहरे की परेशानी भांप ली। क्या बात है? अहमद ने कहा, लोग मेरी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ कामयाबी देखते हैं। जैनब ने सुकून से जवाब दिया, जो लोग सच जानते हैं उन्हें वजाहत की जरूरत नहीं होती, और जो झूठ पर यकीन करना चाहते हैं उन्हें दलील भी कायल नहीं कर सकती। अहमद का दिल हल्का हो गया। चंद ही हफ्तों बाद सल्तनत के दारुल हुकूमत से एक शाही काफिला गांव के करीब पहुंचा। बादशाह ने दूर दराज इलाकों से बेहतरीन ताजरों को बुलाने का हुक्म दिया था ताकि सल्तनत के लिए सामान खरीदा जा सके। अहमद के मालिक को भी दावत मिली, मगर ताजिर उम्र रसीदा हो चुका था। उसने अहमद से कहा, अब तुम ही मेरे नुमाइंदे हो, तुम दारुल हुकूमत जाओगे। अहमद घबरा गया। मैं एक मामूली आदमी, ताजिर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मामूली नहीं, ईमानदार हो, और ईमानदारी सबसे बड़ी सिफारिश होती है। घर पहुंचकर अहमद ने जैनब को ये खुशखबरी सुनाई। जैनब ने फौरन 2 रकअत नफल अदा किए और कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक और दरवाजा खोला है, मगर याद रखना, जितना इंसान बुलंद होता है उतना ही उसे आजी अख्तियार करनी चाहिए। अगली सुबह रवानगी से पहले जैनब ने एक छोटा सा कपड़े का थैला अहमद के हाथ में दिया। उसमें सिर्फ चंद खजूरें, पानी की एक छोटी मशक और एक हाथ में लिखी हुई दुआ थी। अहमद ने हैरान होकर पूछा, ये दुआ क्यों? जैनब ने मुस्कुरा कर कहा, जब भी दिल घबराए इसे पढ़ लेना। इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, मगर अल्लाह की मदद कभी खत्म नहीं होती। दारुल हुकूमत पहुंचकर अहमद हैरान रह गया। ऊंची फसीलें, वसी बाजार, रंग बिरंगी दुकानें, घोड़ों की टापें और शाही महल की शान और शौकत देखकर हर कोई मुतासिर हो जाता था। शाही वजीर ने तमाम ताजरों को एक बड़े हाल में जमा किया। उसने ऐलान किया, बादशाह सिर्फ उस शख्स से सौदा करेगा जो सच्चा, दयानतदार और इंसाफ पसंद होगा। कई ताजरों ने अपने माल की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की। किसी ने झूठ बोला, किसी ने वजन में कमी की और किसी ने कीमतें बढ़ा दी। जब अहमद की बारी आई तो उसने नहायत सादगी से कहा, मेरे माल में जो खूबी है वो मैंने बयान कर दी, और अगर कोई कमी है तो वो भी छुपाना मेरे लिए जायज नहीं। हाल में खामोशी छा गई। वजीर ने हैरत से पूछा, तुम अपने माल की कमियां खुद बता रहे हो? अहमद ने जवाब दिया, झूठ बोलकर एक सौदा तो हो सकता है, मगर अल्लाह की रजा नहीं मिल सकती। ये अल्फाज सुनकर वजीर बहुत मुतासिर हुआ। उसने अहमद को शाही दरबार में पेश करने का फैसला किया। अगले दिन अहमद को बादशाह के सामने पेश किया गया। दरबार में बड़े बड़े अमीर, वजीर, सिपहसालार और दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने अहमद को गौर से देखा और पूछा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, क्या ये सच है? अहमद ने सर झुकाकर कहा, हजूर, मैं कामिल इंसान नहीं हूँ, मगर झूठ से हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ। बादशाह ने एक और सवाल किया, अगर तुम्हें मालूम हो कि सच बोलने से तुम्हें नुकसान होगा तब भी तुम सच बोलोगे? अहमद ने बगैर सोचे जवाब दिया, रिज्क, इज्जत और जिंदगी सब अल्लाह के हाथ में है, इसलिए नुकसान सिर्फ वही देता है जो अल्लाह चाहे। यह जवाब सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे लोग हमारी सल्तनत का सरमाया है। उसने शाही वजीर को हुक्म दिया, आज से सल्तनत के अहम तजारती मामलात में अहमद की राय भी ली जाएगी। अहमद ने फौरन कहा, यह सब मेरे रब का फजल है, मेरा कोई कमाल नहीं। कई दिन बाद अहमद इज्जत, कामयाबी और नए मायदों के साथ अपने गांव वापस आया। पूरा गांव उसके इस्तकबाल के लिए जमा हो गया। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मगर अहमद सीधा अपने घर आया।
घर पहुंचते ही उसने देखा कि जैनब हस्बे मामूल एक यतीम बच्ची के कपड़े सी रही थी। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हें मालूम है आज बादशाह ने मेरी तारीफ की? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद ने कहा, तुम्हें हैरत नहीं हुई? जैनब ने नरमी से जवाब दिया, जिस अल्लाह ने तुम्हें फाकों से निकाला वो तुम्हें इज्जत भी दे सकता है। मुझे उसकी कुदरत पर कभी शक नहीं था। अहमद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे आज समझ आया कि मेरी किस्मत उस दिन बदलना शुरू हुई थी जिस दिन तुम इस घर में आई थी। तुमने मुझे दौलत नहीं दी बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं अहमद, किस्मत मैंने नहीं बदली, किस्मत तो अल्लाह ने बदली है। मैं तो सिर्फ हर रात उसके हजूर तुम्हारे लिए दुआ किया करती थी। उसी लम्हे मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़े। उन्हें खबर ना थी कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें दौलत, इज्जत और जान तीनों खतरे में पड़ जाएंगे और पूरे गांव को मालूम हो जाएगा कि असल ताकत दौलत में नहीं बल्कि ईमान, सब्र और दुआ में होती है। कई महीने खुशहाली और सुकून से गुजर गए। अहमद की तिजारत दिन ब दिन तरक्की करने लगी। उसकी दयानतदारी की मिसालें दूर दूर तक दी जाने लगी। मगर दुनिया की एक हकीकत ये भी है कि जब अल्लाह अपने बंदे को नेमत देता है तो कभी कभी उसकी आजमाइश भी इसी नेमत के जरिए करता है। एक रात अहमद के पुराने दुश्मन सालम ने चंद बदनाम डाकुओं से मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाया। अगर अहमद जिंदा रहा तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। उसके पास अब दौलत भी है, इज्जत भी। एक ही रात में उसका सब कुछ खत्म कर दो। चंद दिन बाद अहमद अपने चंद साथियों के साथ एक तजारती काफले में रवाना हुआ। काफले में कीमती कपड़े, मसाले, खुशबुएं और सोने के चंद थैले भी मौजूद थे। रात के वक्त जब काफला एक सुनसान आबादी में रुका तो अचानक चारों तरफ से घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। डाकू, हर तरफ शोर मच गया। तलवारें निकल आईं। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अहमद ने सबसे पहले अपने साथियों से कहा, किसी की जान माल से ज्यादा कीमती है, घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो। उधर गांव में जैनब की आंख अचानक खुल गई। दिल बेचैन था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे अहमद किसी मुसीबत में हो। उसने फौरन वजू किया, जायनमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। ऐ मेरे रब, अगर मेरे शौहर पर कोई मुसीबत आई है तो अपनी रहमत से उसकी हिफाजत फरमा। उसी लम्हे वादी में तेज आंधी चलने लगी। गर्दो गुबार इस शिद्दत से उठा कि डाकू एक दूसरे को भी ना देख सके। उनके घोड़े बितक गए, सफें टूट गईं और वो घबराकर मुख्तलिफ सिमतों में भाग निकले। अहमद और उसके साथी हैरान रह गए। चंद ही लम्हों में वो खौफनाक हमला खत्म हो चुका था। अहमद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये तेरी ही मदद थी। काफला खैरियत से वापस आया तो बादशाह तक ये खबर पहुंची कि अहमद ने ना सिर्फ काफले को बचाया बल्कि किसी साथी का माल भी जाया नहीं होने दिया। बादशाह ने उसे शाही दरबार में बुलाया और इनाम के तौर पर सोने के कई संदूक, एक उम्दा घोड़ा और खजूरों का एक बड़ा बाग अता किया। गांव वाले हैरान रह गए। कभी जो अहमद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज अल्लाह ने उसे बेशुमार नेमतें अता कर दी थी। लेकिन अहमद ने घर पहुंचते ही सबसे पहले जैनब से कहा, हम इन नेमतों का क्या करें? जैनब ने ना सोने को देखा, ना बाग की खुशी मनाई। उसने सिर्फ इतना कहा, सबसे पहले इन लोगों की फहरिस्त बनाते हैं जिन्होंने भूख, कर्ज या बीमारी की वजह से जिंदगी मुश्किल बना रखी है। इन नेमतों में उनका भी हक है। चंद ही दिनों में अहमद और जैनब ने कई यतीम बच्चों की कफालत शुरू कर दी। बेवाओं के लिए माहाना राशन मुकर्रर कर दिया, मुसाफिरों के लिए एक सबील बनवाई और गांव के किनारे एक छोटा सा मुसाफिर खाना भी तामीर करवा दिया। लोग हैरान थे कि दौलत आने के बावजूद इन दोनों की सादगी में जरा भी फर्क नहीं आया। सालम ये सब बर्दाश्त ना कर सका। उसने आखिरी बार अहमद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर उसकी हर चाल नाकाम होती गई। एक दिन वो खुद एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गया। जख्मी हालत में कई लोग उसके पास से गुजरे, मगर किसी ने मदद ना की। इत्तेफाक से उसी रास्ते से अहमद गुजर रहा था। उसने सालम को पहचान ली। साथियों ने कहा, इसे छोड़ दो, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था। अहमद ने जवाब दिया, अगर मैं भी इसकी तरह बन गया तो फिर मेरे में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। उसने सालम को अपने कंधे पर उठाया, हकीम के पास ले गया, उसका इलाज करवाया और तमाम खर्च खुद अदा किया।
जब सालम को होश आया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अहमद के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर तुमने मेरे साथ भलाई की। अहमद ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने अपनी गलती कबूल कर ली थी। सालम ज़ारो कतार रोने लगा। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि माफ कर देना इंतकाम लेने से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत है। एक शाम गांव के बुजुर्ग, नौजवान और औरतें सब अहमद के घर जमा हुए। सबके ज़हन में एक ही सवाल था। एक बुजुर्ग ने अदब से पूछा, अहमद, हमें सच सच बताओ, तुम्हारी किस्मत आखिर बदली कैसे? अहमद ने चंद लम्हे खामोश रहकर ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब नजरें झुकाए बैठी थी। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिन मेरी शादी ज़ैनब से हुई उस दिन मेरे घर में दौलत नहीं आई थी, लेकिन ईमान, सब्र, शुक्र और दुआ आ गई थी। फिर उसने लोगों को वो तमाम वाकयात सुनाए। किस तरह ज़ैनब ने आखिरी रोटी एक भूखे मुसाफिर को दे दी थी, किस तरह हर रात वो तहज्जुद में उसके लिए दुआ करती थी, किस तरह वो खुद भूखी रहकर भी गरीबों को खाना खिलाती थी, किस तरह हर मुश्किल वक्त में उसने नाशुक्री की बजाय सब्र और अल्लाह पर भरोसा सिखाया। अहमद की आवाज बाहर आई, अगर मेरी जिंदगी में कोई सबसे बड़ी नेमत है तो वो मेरी नेक बीवी है, जिसने मुझे अल्लाह से जोड़ दिया। गांव वालों की नजरें ज़ैनब पर जम गई। ज़ैनब ने आजिज़ी से कहा, मुझे कोई तारीफ ना दो, हर भलाई अल्लाह की तरफ से है। अगर हर घर में शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे का सहारा बने और अल्लाह पर भरोसा रखें, तो अल्लाह उनके लिए भी खैर के दरवाजे खोल देता है। वक्त गुजरता गया, कई बरस बीत गए। अहमद अब पूरे इलाके के मुअज़्ज़िज़ तरीन ताजरों में शुमार होता था, मगर उसकी जिंदगी आज भी सादा थी। ज़ैनब आज भी फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करती, फिर यतीम बच्चों को पढ़ाती और गरीबों की मदद करती। उनके बच्चे भी वालिदैन के नक्शे कदम पर चलने लगे। अहमद अक्सर अपने बच्चों से कहा करता, हमारी कामयाबी का राज सोना चांदी क्या तिजारत नहीं, हमारी कामयाबी का राज तुम्हारी माँ की दुआएं हैं। एक दिन बुढ़ापे में अहमद अपने घर के सेन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसने ज़ैनब से कहा, अगर अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे और दोबारा इंतखाब का इख्तियार दे तो मैं फिर तुम्हें ही अपनी शरीके हयात मुंतखब करूंगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, और मैं भी अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि दुनिया हो या आखिरत, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहे। दोनों ने हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनकी आंखों में इत्मीनान था, क्योंकि वो जानते थे कि हकीकी कामयाबी दुनिया की दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सबक ये नहीं कि सिर्फ शादी से किस्मत बदल जाती है, बल्कि ये है कि जब एक घर में ईमान, सब्र, शुक्र, हलाल रिज्क, दुआ और एक दूसरे का एहतराम मौजूद हो तो अल्लाह ताला उस घर पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। एक नेक बीवी अपने शोहर की ताकत बन सकती है और एक नेक शोहर अपनी बीवी की इज्जत और ढाल बन सकता है। जब दोनों अल्लाह पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं और दूसरों की भलाई चाहते हैं, तो उनकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है जिसे सिर्फ मालो दौलत से नहीं नापा जा सकता। याद रखें, किस्मत बदलने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत के लिए बाज़-औक़ात नेक अमाल, सच्ची दुआओं, सब्र और मुखलिस रिश्तों को जरिया बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इससे कुछ सबक मिला हो या इसने आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खूबसूरत पैगाम से फायदा उठा सकें। अल्लाह ताला हम सबको नेक, साबर, शुक्रगुजार और एक दूसरे का सहारा बनने वाला इंसान बनाए। आमीन।